I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaskar, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so much for all your love and affection. As I always say, this family is a big family with 50,000. It's amazing. My abundance, my gratitude, my heartfelt thanks to each one of you. कहते हैं ना निशब्द हो रहे हो, तो मैं आज एक्चुअली निशब्द हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपके लिए ग्रैटिट्यूड फील करूं. मेरे पास वर्ड्स नहीं है. आई एम स्पीचलेस. आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टुडे. अदरवाइज बीइंग अ टीचर एंड अ प्रीचर, आई नो आई एम ऑलवेज फुल ऑफ सो मच ऑफ things and matter to share with you, but today it's like all of a sudden there's a zip around here. So once again, thank you. Okay, so in continuation with what we have been talking about is how is 2022 going to be. I have already completed and covered number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5, and this is the recording which I'm going to be commencing is for number 6 today. So number 6 people, so that means all those who are born on 6th of any month, or else who have been born on 15th of any month or 24th of any month. This resonates with them. Or else if your destiny number is 6, that means the sum total of your birth date and month and the year comes together as 6, then also this is your reading. Or else neither your birth date is 6 but nor your destiny number is 6, but in between you have 2 6s, whereas your month is 6, that's you are a June born, and the year total, the number of the year total is also 6, then again this reading will resonate you because you are being influenced by number 6 more than any other number. Right, so please understand all the explanation is given as an example in the description box. आप बार बार मुझसे कमेंट करके पूछते हो मैम समझा दीजिए, बता दीजिए मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरा बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है. सो आई हैव एवरी टाइम आई गिव वन एग्जाम्पल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसके बेसिस पे विज यू कैन टेक इट अप. Another question, very many of us ask this question as to ma'am what is more important, birth number or destiny number. अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए लेफ़्ट आई इम्पॉर्टेंट है कि राइट आई इम्पॉर्टेंट है, आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली दोनों, राइट. सिमिलरली हमारे लिए बर्थ नंबर भी इतना इम्पॉर्टेंट है जितना डेस्टिनी नंबर इम्पॉर्टेंट है. हर एक चीज़ की एक डिफरेंट रीजनिंग होती है. हमारी लाइफ में हर एक नंबर का एक डिफरेंट काम होता है. जैसे हमारी 5 फिंगर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एक साथ मिलती हैं तो हाथ बनता है, एक साथ मिलती हैं तो हम 5 उंगलियों को जोड़कर और रोटी का टुकड़ा तोड़कर और अपने मुंह में जब हम डालते हैं, सो दे ऑल वर्क टुगेदर. सो वी कैन नॉट से दैट दिस फिंगर इज़ इम्पॉर्टेंट और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट or this, all of them are important. Similarly, every number in our birth chart is important. Similarly, everything, we are born with some things to do and we are destined to complete couple of tasks during this lifespan of ours. That's the reason and that's the beauty of the numbers. Anyhow, ये डिस्कशन के लिए एक पूरी अलग से वीडियो बन सकती है विच आई कैन ऑलवेज गो अहेड. आई नो जिनका 6 नंबर है दे मस्ट बी गेटिंग वेरी एंशियस एज टू मैम प्लीज स्टार्ट ऑफ क्विकली फिनिश इट ऑफ सो दैट वी नो व्हाट इज दिस ईयर गोना गोइंग टू बी फॉर अस लाइक. सो हाउ इज दिस ईयर गोना गोइंग टू बी 2022. अगर मैं 2022 की बात करूं तो आप देखोगे इसका टोटल 6 है. सो यू विल से हाई दिस इज़ आवर ईयर, दिस इज़ आवर नंबर. Yes, of course, this is your number. But don't forget, directly 6 नहीं बना है. कैसे 6 बना है? 2 plus 2 plus 2. So what does it imply? It implies it's a united number. That means it is a group number. आप सबके साथ मिल के चलते हो तो ये आपका साल है. अगर आप सबके साथ लिए बिना चलते हो तो ये आपका साल यकीनन नहीं है. सो जब हम इन सबको साथ लेके चल रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज़ द नंबर ऑफ यूनानिमिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ कोहिसिवनेस, इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ आइसोलेशन. थंब रूल फॉर दिस ईयर इज़ सक्सेस ओनली व्हेन यू आर टुगेदर. अपार्ट फ्रॉम दैट ये नहीं सोचना कि मेरा यह साल है, मैं अकेले पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ. नहीं, आपको सबका साथ देना पड़ेगा तभी आप पहाड़ पर चढ़ पाओगे. सो अब हम किन चीज़ की बात करने वाले हैं इस नेक्स्ट पार्ट में. आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर करियर,
I'll be talking about your health, I'll be talking about your money, and I'll be talking about your relationships, as I have discussed in the rest of the remaining videos. So first and foremost, let me talk about career. Now when I talk about career, I will say this is the year that you have to bring your thoughts to action. सिंस आई हैव टोल्ड यू, आप बहुत रोमांटिक होते हो, डाई हार्ड रोमांटिक होते हो, आप बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो, आप बहुत सोच में रहते हो, आप बहुत, इनफैक्ट आप जैसे लोगों को ना प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत गजब की होती है और आप उस ड्रीमी वर्ल्ड में कहाँ से कहाँ तक चले जाते हो. एंड यकीन मानो आप लोग मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को उस जगह, उस पॉइंट पे पाते हो अक्सर, right? So most of the time when you feel that yes, I am capable of doing it, you actually are capable of doing it. So in career, please ensure this year you bring all those dreams into action, because those will be paying you richly, dividendly. So what will you do? In career, you will form teams, you will work in the teams and not alone. Second important thing, whatever you have envisioned, keep your visions high. Whatever you have envisioned, bring them to success. That is possible. You will also start up new things in your life this year, particularly in terms of your business activities. In case you are related to any of the businesses which is related to number 6, which I am sure if you are in business you would already be. What are those activities? Those are very creative fields, those are IT related fields, those are jewelries field, that is the field of creativity, fashion. So these kinds of new industries which you want to set up, or new factories which you want to set up, or new businesses which you want to set up, they are going to be really going to give you a lot of success. Another advice which I'll give you, create your vision board. You are a good dreamer, you are a good manifester. So create that manifestation board or a vision board. Write down where you see yourself by December 2022. अपने लिए एक विजन बोर्ड बनाएंगे, जो जो चीज़ें आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना अपने लिए, उन सबको वहाँ पे पिक्चर्स उनसे रिलेटेड लगाएंगे और एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स एंड विजन स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और लिखने के बाद आप उनको यूज़ करेंगे. आप हर रोज़ सवेरे पढ़ेंगे और हर रोज़ सोने से पहले पढ़ के सोएंगे, और आप देखना कैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी आपकी लाइफ में, बिकॉज ये साल आपका साल है. सो अब मैं सेकेंड पार्ट की बात करती हूँ, विच इज़ रिलेशनशिप्स. आप इस साल बहुत से नए लोगों से मिलने वाले हैं. यू आर गोइंग टू हैव फ्रेंडशिप्स विद लॉट ऑफ पीपल. द सर्कल इज गोइंग टू ग्रो, बिकॉज यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क प्लेस. यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज यू विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट. सिंस यू विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, आप इतने सब लोगों से मिलेंगे, इतना बड़ा सर्कल होगा, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो दैट यू मे फाइंड दैट स्पेशल समवन विद whom you want to spend your life. और अगर वो स्पेशल समवन ऑलरेडी है या था या थी, तो उसके साथ इस साल देयर इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी यू कैन गेट मैरिड, और यू कैन प्लान a baby, or you can plan the life ahead with that particular person. And another very important aspect this year which is going to happen is, if in case because of some rhyme or reason that there was something which did not happen or materialize in the last year because of anything which was because of मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और आपका आपस में मनमुटाव रहा हो, या फैमिली की वजह से, किसी भी वजह से जो रिश्ता आगे कंप्लीट नहीं हो पाया, देयर इज़ 100% चांसेस कि इस साल वो चीज़ें सिरे चढ़ेंगी, वो रिश्ते पनपेंगे, एंड दोज विल हेल्प यू इन अचीविंग एंड गेटिंग दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स विच यू हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू. एडवाइस. तो अब रिलेशनशिप्स में क्या एडवाइस है? रिलेशनशिप में ये एडवाइस है, सिंस आपका बहुत अच्छा वाला टाइम है, रोज़ी टाइम है, ये पूरा साल भर अच्छा टाइम रहने वाला है. डू नॉट put all your eggs in one basket. I mean to say, सारी attention और सारी तवज्जो सब कुछ, do not put it only on the relationships and not thinking about your goals and your vision board that you have created and your thoughts that you have created for your own career or money. Okay, because it's going to be a mushy time for you, and you're going to enjoy those beautiful times spent together for relationship. So please try and understand that वो 24 घंटे में से कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा है, but 24 के 24 घंटे you should not be only concerned about that, right? Another second piece of advice is that stick to the partner that you have chosen.
क्योंकि बहुत बार अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी को बहुत प्यार करते हैं या हमारे लिए वो बहुत अच्छा है या अच्छी है. आफ्टर अ वाइल वी मीट कपल ऑफ अदर पीपल एंड वी रियलाइज दैट ओ there's a better person available. So आप जब इन चीज़ों के साथ, चाहे वो ममा पापा का संबंध हो, चाहे वो बच्चे और माँ बाप का हो, चाहे वो हमारा एज स्पाउस हो, चाहे हमारी फ्रेंडशिप्स के अंदर हो, आई फील ओल्ड इज़ गोल्ड एंड आई फील एक के साथ कमिटेड रहोगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट योर मनी. बहुत अच्छा टाइम. आई टोल्ड यू दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी एन एक्सेलेंट टाइम फॉर यू. दोज ऑफ यू, दोज थिंग्स विच यू फेल्ट कि पूरी नहीं हो पाई लास्ट ईयर में किसी कारण से, दिस ईयर यू विल सी टू इट दैट यू गेट अकम्प्लिश्ड. ऑल दोज थिंग्स यू नो दे विल फॉल इन टू प्लेसेस. जहाँ जहाँ पे हमारी पुरानी चीज़ें अधूरी रह गई थी, दोज विल कंप्लीट एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग रीपिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. पैसों के लिए बहुत अच्छा टाइम है. आपके पास बहुत धन आएगा, बहुत संपत्ति आएगी. देयर विल बी अ ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर and you will be happily accepting the growth. So here the piece of advice is, number one, gratitude. You must continue paying your gratitude every now and then. शुक्राना जितना करें उतना ही अच्छा. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ. सेकेंड पीस ऑफ एडवाइस इज़ कि आपके पास बहुत सारी अबंडेंस में चीज़ें आने वाली हैं. रिलेशनशिप्स भी अबंडेंस में आएंगी, वेल्थ भी अबंडेंस में आएगी. बट आपको एक ध्यान ये रखना है कि आपने कहीं पे भी पैसों के मामले में झूठे प्रॉमिसेस नहीं करने हैं, बिकॉज वो बैकफायर करेंगे. जहाँ पे भी आपको जो भी लेना देना है, वॉट एवर यू नीड टू गिव, प्लीज़ एंश्योर दैट यू आर गिविंग इट बैक टू द पर्सन और द पर्सन जहाँ पे भी आपने जो प्रोमिस किए थे, वेदर इट वॉज फॉर एन इंस्टीट्यूशन और फॉर एन एजुकेशन, या आपने अपने बच्चे से ये कहा था कि दिस यू डू दिस तो आई विल गिव यू दैट. या तो प्रोमिसेस ही नहीं करिए तो उन्हें प्लीज़ फुलफिल करिएगा, अदरवाइज दैट विल बैकफायर टू यू. सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवाइस ओवर हियर इज़ कि सिंस यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, हाउ यू कैन कीप द साइकिल रनिंग एंड ऑन इज़ you will have to donate. What and where? This year I would highly recommend you to donate in an old age home. Old age home, especially where there are a lot of women, because this is a feminine year. So wherever you have old age home, what will you donate? You will donate things of luxury. Luxury means उनके आराम के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं. ओल्ड एज में लग्जरी का कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रहता. कंफर्टेबल क्लोथ्स ओल्ड एज के लिए लग्जरी हैं. कंफर्टेबल पलंग और बिस्तर लग्जरी है. पंखा या कूलर या एसी लग्जरी है. तो ऐसी चीज़ें आप उन्हें डोनेट करिए, समथिंग विच कैन ऐड ऑन टू देयर कंफर्ट, राइट, टू एन ओल्ड एज होम. आई गिव यू अ बिग थम्स अप फॉर दैट. फॉर ऑल 6 number people, you must try doing that. अच्छा, बिफोर दैट, हाँ, one small piece of advice, don't overspend. Keep something for the rainy day. It is important. कहते हैं 12 महीने ठंड नहीं पड़ सकती, 12 महीने गर्मी नहीं रहती, 12 महीने बरसात नहीं होती. सो इन दैट केस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो कीप कपल ऑफ थिंग्स विद अस विच इज़ इम्पॉर्टेंट. थिंक ऑफ प्रेजेंट बट ऑल्सो थिंक ऑफ द फ्यूचर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ, जो कि ये साल आपके लिए सब चीज़ों के लिए अच्छा है. हेल्थ के लिए थोड़ा सा नासाज है. समवेयर और द अदर यू नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट योर हेल्थ. व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर ईटिंग, स्पेशली सो बिकॉज यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग आउटसाइड. आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बाहर जाना, डिनर करना, पार्टी करना. यू लव दीज थिंग्स, बट एट द सेम टाइम दिस ईयर बी अ लिटिल कॉन्शियस अबाउट वॉट गोज इन टू योर माउथ, बिकॉज वॉट एवर गोज इन टू योर mouth eventually you are going to be created, it will be reflected on your health the same way. So ध्यान रखना है, आपने बाहर का खाना कम खाना है. Fridays are your days, so Fridays के दिन try and have something in white, try and had something in off white. दूध, मिल्क के प्रोडक्ट्स कुछ ले सकते हैं आप. नारियल आप ले सकते हैं, वाइट कलर का होता है. एनीथिंग विच एड्स ऑन टू योर टू वाइट. ऑल्सो अवॉइड टू स्वीट फूड्स एंड अवॉइड फ्राइड फूड्स. हालांकि ये हर कोई बोलता है, बट मैं आपके लिए स्पेसिफिकली बोलूँगी बिकॉज आप बहुत बड़े फूडी हो और आपको बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अवॉइड इट. अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन फ्राइडे नो लिकर, नो नॉन वेजिटेरियन फूड, नो एग्स, and preferably home cooked food, nor outside food. Now you will say, ma'am, my husband or my wife is number so and so, or my friend is so and so, or my parents are number so and so. 5 number वालों के लिए आपने इन 3 दिनों का बोल दिया, 3 number वालों के लिए उन 2 दिनों का बोल दिया, 6 number वाले के लिए फ्राइडे का बोल दिया. तो हम कौन से दिन पार्टी करें? सो पते की बात तो यही है कि
it's important. घर का खाना is the best. Vegetarian food is the best. Gradually, when we come to this, we realize the importance of home cooked, freshly grown vegetarian food. Right? जितना हो सके अपने आप को चेंज करेंगे, it's gonna going to be good for you. आप मुझसे बहुत सब पूछते हो हैप्पी रहने का रीज़न ये सब क्या है, तो खाना एक सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे को अंदर से हैप्पीनेस देता है, और जब हमें अंदर से हैप्पीनेस मिलती है तभी हम बाहर से हैप्पी हो सकते हैं. ज़बान पे नहीं जाना है, पेट पे जाना है, राइट. और आइज़ को अपीलिंग चीज़ें दिखती हैं, शायद वो इतनी प्रोसेस्ड होती हैं कि वो हेल्थ के लिए ख़राब हो सकती हैं. सो अवॉइड शुगरी फूड एंड अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड, अवॉइड लिकर ऑन फ्राइडेज, स्पेशली सो ऑन फ्राइडेज. एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. नाउ बिफोर आई वाइंड अप दिस वीडियो, आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मेरे बहुत से लोग जान पहचान वाले नंबर 6 के हैं, तो मुझे लगा, और किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम नंबर 6 आप नंबर 3 के लिए पार्शल हो या 9 के लिए, तो मुझे लगा नहीं मैं किसी के लिए पार्शल नहीं हूँ. हर एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, हर एक माँ बाप के लिए सारे बच्चे अच्छे होते हैं. एंड इसीलिए ख़त्म करने से पहले 2 छोटी छोटी अनाउंसमेंट. नंबर 1, आपके मेल्स मेरे पास आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल वाले मेल्स होते हैं. दे आर अमेजिंग द वे यू राइट थिंग्स टू मी. बिलीव यू मी, दे नॉट ओनली मेक माई डे, they make my many days because I feel so pepped up, so happy and chirpy. There is this message by Mr. Aaron William, right? I'll just take it up. Yes, this is by Mr. Aaron William. I don't know whether I am pronouncing your name properly or not. So he has specially said that ma'am, when you wind up the video, when you say I love you, आप किस देते हो ऐसे करके, तो आप वो मत दिया करो, because as it is we are a big fan of yours. So sweet of you. मैं पढ़ी और मैं पढ़ के बहुत देर हंसती रही. Mr. William, I kept laughing after this because, and I specifically went up to my husband to tell him कि see, there are so many people who adore me like what I am. So you know, you need to understand that you also have to shower your love and affection to me more than anything else, right? So the answer to you is that that's my inherent nature, and since I was a teacher since 30 years ago, I have always been loving and affectionate towards my students, towards everybody, and I think वो अंदर घुसा हुआ है. So I'll continue doing so. You treat it as it is coming for you, right? Another thing, another very beautiful message by Captain Shankar Sethuraman. I think I again pronounce it well. Deeply touched, Captain. You know, your words, it's like something coming as messages from Almighty, and I'm indebted, I'm humbled, I'm grateful to you for giving so much of an affection, love, and I'm full of gratitude. That's the only thing I can say. मुझे भगवान ने टीचर और प्रीचर बनाया, उसके लिए I am grateful to you. और हाँ, किसी ने पूछा था मैम आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं. सो आई हैव डन माई डॉक्टरेट इन एजुकेशन, राइट, एंड आई एम एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन. दैट्स व्हाट इनिशियली इट सेज. The initial video which comes is all about that I'm a teacher preacher, right? So this is what I have been, and I'm proud of the fact that I'm a teacher. God bless you. Thank you so much, and stay abundant, stay happy, and have a blissful 2022. Please wait for video number 7, 8 and 9 because वो मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, और कल मंडे है, कल से मुझे ऑफिस भी जाना है. I'll try my level best to do justice to them, and there are a lot of people who are asking for a lot of manifestation videos and techniques, and lot of questions on crystals are coming. थोड़ा शांति रखो, शांति. It's like every day about 2 hours I get in the evening, late evening or night, when I record or I read or I create the script, and I do both Instagram as well as here. So please थोड़ा सा ढांढस रखो, and soon I'll be there. All the very best. थैंक यू सो मच. एंड अब नंबर 6 वाले बिल्कुल नहीं कहेंगे ये वीडियो लंबी हो गई है, तो ये आपके लिए स्पेशली लंबी की गई है. ओके, गॉड ब्लेस यू. Lots of love and lots of love.